Yes, once again, very good morning. So as you all can see, the income method formula is written on the screen, you can see. So yesterday we have covered the theory part of this method. That can be there. We can have one question, right, to give some precautions of income method, what are the steps of income method, or very prominent question which may be there in the paper, in your final paper, that may be, what are the components of factor income, या एक्सप्लेन फैक्टर इनकम या एक्सप्लेन डोमेस्टिक इनकम. ठीक, तो एक्सप्लेन डोमेस्टिक इनकम के अंदर दैट मीन्स वी हैव टू गिव कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज very briefly, further their components parts, then operating surplus briefly इसके parts, then mixed income. ठीक है, लास्ट में ये formula which is written here, ये वाला formula. ठीक, तो in this manner various theory questions can also be there. Next is now numerical part के लिए, now please revise. अब आपके को इसके पार्ट्स याद होने चाहिए. सो इनकम मेथड में एनीथिंग वट एवर इज आस्क्ड वी हैव टू स्टार्ट विद दिस टर्म. ठीक है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, वी कैन बी आस्क्ड टू कैलकुलेट एनी टर्म, बट वी हैव टू स्टार्ट विद दिस. मीन्स इक्वल टू साइन के बाद हमने ये लिखना है, ये टर्म को लेके आना है, फिर देन वी विल सी वट कैन बी डन. So what is the constitution of this very term? Constitution means what are its parts? So its parts are, they are compensation of employees. O आपकी मर्जी है, you may write, you may skip, hardly matters. CE भी it's okay. So compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. ठीक. So let us recall what are the parts of this. Compensation में आ जाता है wages and salaries in cash kind. Second is employers contribution to social security schemes, and third is retirement pension. ठीक है, तो कई बार numerical में we will be given this main term, and sometimes we are not given the main value, this term is missing, rather इसके components are given. So in that case we have to firstly add them in bracket to come to this very term. Similarly, operating surplus includes rent, royalty, interest, profit. And mixed income के आगे कोई parts नहीं होते हैं. This will be the single value that we will be able to know. अगर question में नहीं दिया हुआ है and we require this, तो then we can put 0 also. ठीक है, we have to start with our proper formula. If any terms value is missing, that we can assume 0. कि नहीं है तो फिर 0 मान लेंगे उसको. After that we have to calculate national income. Formula क्या है इसका? Net national product at factor cost, or the same is called national income. This is equal to ये वाली डोमेस्टिक इनकम, दिस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये प्लस कर देना इसमें, क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो वी जस्ट नीड टू मेक इट एट नेशनल लेवल, सो वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर ये इफ वी ऐड दिस तो देन वी गेट दिस वेरी टर्म. यू कैन कंपेयर, बोथ टर्म्स आर नेट, बोथ आर एट फैक्टर कॉस्ट. देयर इज ओनली वन डिफरेंस, ये नेशनल है, दिस इज डोमेस्टिक, वी हैव टू मेक इट नेशनल. ठीक, देन नीचे ब्रैकेट में इट्स कंपोनेंट्स आर रिटन, जो यही वाले ऊपर लिखे हुए हैं, सीई कंपनसेशन, ऑपरेटिंग एंड मिक्स्ड इनकम. So I hope you all will keep these methods in your mind. Now let us start our numerical part. So please write down quickly. Calculate NDP at factor cost, or you can see from the screen as you wish. Later on I will send the pics also in the class group. So rent is 1400, royalty 200, interest 1500, wages and salaries 800, profit 500, mixed income 1000, depreciation 70, and then last is employers contribution to social security schemes. ये ट्रिपल एस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लिख दिया जाता है, तो आपने समझ जाना है, दिस मीन्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, दिस इज इक्वल टू 200. नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट हमने करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. आई होप ऑल हैव रिटन. चलिए जी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला. ठीक है, ये निकालना है, सो इट शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, नाउ वी नो वेरी वेल, compensation of employees plus operating plus mixed income. ठीक है, now you see in your question, is there any direct value of CE is given? CE की clear cut value is not given. आप check करो, nowhere it is written कि compensation of employees is equal to so and so. It's not given. ठीक है, but if we observe carefully, then what do we see? जो parts होते हैं of this compensation, those parts are given. So that means firstly we have to elaborate this term in bracket. इसको पहले expand करना पड़ेगा.
सो वी विल कीप इट इन ब्रैकेट वेजेस एंड सैलरीज, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वेजेस एंड सैलरीज। आगे मर्जी है आपकी, इन कैश काइंड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इतना ही दिया होता है क्वेश्चंस में वेजेस एंड सैलरीज, तो दैट मीन्स इन कैश काइंड दोनों ही हैं, ठीक, मतलब इकट्ठा ही दिया होता है। प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्लस रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, देन वी हैव टू कीप इट इन वन ब्रैकेट टू बी क्लोज्ड। नाउ प्लस ये वाला प्लस का साइन इट कम्स हियर, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ यू सी इन द क्वेश्चन कहीं पर भी वी आर नॉट गिवन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, ओएस करके ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन बट इट्स पार्ट्स आर गिवन। नाउ यू सी पार्ट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, all parts are given. So again we have to write all parts of operating surplus in one bracket. ये सबको एक ब्रैकेट में, ये कुछ नहीं है, पहले मैंने छोटी सी ब्रैकेट लगाई थी, ये कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट ही थी, तो आपने इकट्ठा लिख लेना है। रेंट प्लस रॉयल्टी, बेटा ये माइनस साइन नहीं है, ये मेरे से गलती से पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाई थी, देन आई मेक इट लॉन्ग। तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, प्लस अब ये प्लस मिक्स्ड इनकम, तो मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक। नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज, नाउ यू प्लीज डू with the help of your question substitute all the values of these terms। wages salaries कितनी है 800 प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 200, ठीक है, प्लस रिटायरमेंट पेंशन नहीं दिया हुआ है ना, मिसिंग है क्वेश्चन में, तो आपकी मर्जी है, यहाँ प्लस जीरो कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ना, तो यहाँ प्लस जीरो कर दें, क्योंकि उसकी वैल्यू इज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट, प्लस जीरो, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ ये वाला प्लस का साइन, ये प्लस साइन, इट्स रिटन हियर। नाउ इन दिस ब्रैकेट वी हैव टू राइट ऑल वैल्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो रेंट है 1400 प्लस रॉयल्टी 200, क्वेश्चन से देखते जाइए, प्लस इंटरेस्ट 1500 प्लस प्रॉफिट इज 500, ब्रैकेट टू बी क्लोज्ड, ठीक, ये बन गई एडिशन ऑफ दीज फोर टर्म्स विल गिव अस ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। नाउ ये प्लस साइन, नाउ मिक्स्ड इनकम, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम, दैट्स गिवन 1000। अगर किसी क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं दी हुई, नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है, प्लस जीरो कर दीजिए, फॉर्मूला को एग्जैक्ट चलाना है, वैल्यू मिसिंग है कोई बात नहीं, जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ हियर इट इज गिवन, सो 1000। नाउ प्लीज चेक हैव आई एडिड करेक्टली और नॉट, आ रहा है ये आंसर, यू कैन, Yes, ma'am. आ रहा है, Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश। तो अभी एक काम और करना है, अभी अवर आंसर इज नॉट कंप्लीट, नाउ यू सी आपके क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया हुआ था यहाँ पे, लेट मी शो, ये देखो रुपीज इन करोड्स, ठीक, तो अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसके साथ में वी नीड टू राइट रुपीज, ये वैल्यू आ गई, यहाँ साथ में करोड़ लिख के देन एनसर्कल दिस, आगे लिख दो आंसर, ठीक है, वेरी सिंपल एंड ईजी, हमने ये पहले भी किया होगा, वो एग्रीगेट वाले में भी कई ऐसे समझाए थे। चलो नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। So please write down, calculate, two things are to be calculated. So calculate operating surplus, secondly domestic income, ठीक है। So particulars, यहाँ particular word भी लिखा होता है, कई बार कई बुक्स में item भी लिखा होता है, item word लिखा होता है, both mean the same. So compensation of employees is 2000 rupees crore. Rent interest has been given as 800. Indirect taxes, आगे उसका नाम भी दे दिया, GST, गुड्स एंड सर्विसेज, ये आ गया, दिस इज 120. कॉर्पोरेशन टैक्स इज 460. उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर दिस टर्म, डू यू रिमेंबर? Depreciation. वेरी गुड, शाबाश, उसके साथ में और छोटा सा लिख लो, बार बार लिख लोगे आपको याद हो जाएगा। सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन, दिस इज 100 एंड लास्टली वी आर गिवन सब्सिडीज 20, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व द स्टेटमेंट, दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर कि यूज इनकम मेथड, है ना, कहीं लिखा तो नहीं है, बस हमें वी हैव बीन गिवन कि कैलकुलेट दिस, तो कोई बात नहीं, वी हैव टू पे अटेंशन टू ऑल द टर्म्स। Now all these particulars are related to income method, तो then we ourselves we have to think कि ये income method से ही हमारा काम चलेगा, ठीक है। मोर ओवर यहाँ से भी थोड़ा हिंट मिल रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक वर्ड से, तो ये इनकम मेथड में ही होते हैं, बाकी मेथड करेंगे उसमें ये वर्ड्स नहीं होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। सो ऑपरेटिंग पूरा लिख लेना आपने, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए पहले, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। पहले राइट द फॉर्मूला करेक्टली,
अगर आप फॉर्मूला इफ यू राइट करेक्टली 60% ऑफ योर वर्क इज ओवर, बाकी तो सब्सटीट्यूशन ही होता है, फॉर्मूला शुड बी करेक्ट। अच्छा, अब नाउ लेट अस सी, जो भी वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट कर देंगे, जो नहीं दिया वो जीरो। नाउ रेंट की वैल्यू इज गिवन, रेंट एंड इंटरेस्ट, प्लीज सी क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, रेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ ये आगे लिख लेना चाहिए था, रेंट प्लस इंटरेस्ट आगे ही कर देती तो एक ही ब्रैकेट हो जाना था, अभी भी नो प्रॉब्लम। तो वी जस्ट पुट दिस वैल्यू दैट इज 800, यहीं लिख दिया, इकट्ठा ही आ गया। ये रेंट और इंटरेस्ट की मिक्स्ड इकट्ठी वैल्यू है, मिक्स्ड है। प्लस रॉयल्टी नहीं है कि है, रॉयल्टी मिसिंग है, तो रॉयल्टी ज़ीरो, ठीक, रॉयल्टी ज़ीरो, ये मैंने बाद में लिख दिया, आप चाहे पहले लिख लो, हार्डली मैटर्स। उसके बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू देखिए, दिया हुआ है इंटरेस्ट, हाँ जी, नहीं इंटरेस्ट सेपरेटली नहीं दिया, सॉरी आई फॉरगॉट, ये इसके साथ ही है, ये रेंट प्लस इंटरेस्ट इकट्ठा ही था, तो नो नीड टू राइट सेपरेटली, 800 ही है। नाउ वी नीड प्रॉफिट, ठीक। नाउ यू सी इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट की एज सच प्रॉफिट वर्ड इज नॉट देयर, ये टर्म नहीं है, बट इफ वी रीड केयरफुली तो वी सी कि पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट आर गिवन। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिकॉल फ्रॉम योर मेमोरी कि प्रॉफिट के कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ प्रॉफिट्स के पार्ट्स पहले लिख देंगे, दोज आर कॉर्पोरेशन टैक्स, पूरा लिख लेना है। मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए ऐसे कर देती हूँ कि बार बार इतना लिखना होता है, बट आप पूरा पूरा ही लिखें तो बेटर रहेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अदर नेम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट समटाइम्स इन द न्यूमेरिकल्स कॉर्पोरेट सेविंग वर्ड दिया होता है, कई बार रिटेन्ड अर्निंग वर्ड दिया होता है, कई बार दिस वर्ड इज गिवन। सो जो वर्ड दिया है आप वो यूज करके अपना ब्रैकेट बंद कर दो। नाउ पुट दीज वैल्यूज, कॉर्पोरेशन टैक्स है 460, डिविडेंड्स है 940, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 300, ब्रैकेट क्लोज्ड। प्लस ये जीरो, कौन सी वाली जीरो थी, ये रॉयल्टी वाली जीरो थी, बिकॉज मैंने यहाँ लिखना भूल गई थी, ठीक। तो चलो नाउ ऐड ऑल दीज, देखिए आता है 2500। Let me see, you can keep your videos on, there should not be any hesitation। टीचर का भी तो वीडियो चलता ही है ना, तो आपको क्यों थोड़ी लगता है कि है, करिए करिए, वीडियो ऑन करिए। वेरी गुड प्रांजल, प्रांजल अभी सो के उठे हो हैं? चलो वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी हरमीन, हो गया बेटे, हैव यू गॉट दिस आंसर, शाबाश। कनिका, आ गया आंसर बेटे 2500, वेरी गुड। चलो बस अभी एक काम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, यहाँ साथ में वी हैव टू राइट रुपीज, इधर करोड़, इसको एनसर्कल कर दीजिए। एनसर्कल करने का मतलब वी जस्ट नीड टू हाईलाइट सो दैट एग्जामिनर कैन सी क्विकली कि भी हाँ जी ये आंसर था। चलो नाउ लेट अस कम टू सेकंड पार्ट, डोमेस्टिक इनकम पूछा हुआ था हमें, ठीक। तो नाउ फर्स्टली वी शुड नो डोमेस्टिक इनकम मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। डोमेस्टिक इनकम तो वर्ड्स में हो गया, फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना हो तो उसी को ये लिख देते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और साथ में इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट और डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी, इज इक्वल टू, नाउ राइट द फॉर्मूला, कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग प्लस मिक्स्ड, ये लिख के नाउ पुट द वैल्यूज। पहले आप चेक करो कंपनसेशन दिया हुआ है, यस इट्स गिवन डायरेक्टली, ये दिया हुआ है 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस हियर वी हैव गॉट, अब दोबारा से रेंट रॉयल्टी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव गॉट द सिंगल वैल्यूज, ठीक है। तो ये 2500 ऐसे ही पुट कर सकते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम दैट इज गिवन इन द एंड 200। सो इफ वी एड, आई थिंक यू ऑल विल बी गेटिंग दिस रुपीज 4700, आ रहा है बेटे, कैलकुलेशन करेक्टली करनी है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कर लीजिए, चेक कर लो। कीप योर वीडियोज ऑन, आई एम रिक्वेस्टिंग, मुझे फिर देख के थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओनली कनिका एंड हरमीन आर फॉलोइंग, एक तमन्ना, वेरी गुड। हाँ जी तमन्ना, हैव यू गॉट द आंसर बेटे, आ गया आंसर 47, वेरी गुड, शाबाश। सान्या, आ गया आंसर बेटे, चलो आई होप इट इज क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेरी सिंपल है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चलो नाउ प्लीज राइट दीज वैल्यूज। अब हमें ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। GDP एट मार्केट प्राइस रुपीज करोड़ में ऑल वैल्यूज आर गिवन। सो मैं बोल देती हूँ, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट। GDP एट मार्केट प्राइस 18,000। देन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वर्ड कई बार लिखा होता है कई बार नहीं, तो भी कोई बात नहीं, हमें पता ही है मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड की होती है 7,000। 7,000 सब्सिडीज, सब्सिडीज आर 250। इंटरेस्ट 800, इंटरेस्ट 800। रेंट क्वेश्चन मार्क है बिकॉज रेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। देन प्रॉफिट 975, कंपनसेशन 6,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जस्ट ए मिनट बेटा, आप नोट करिए जरा। चलो जी, अब हम वी ट्राई टू फाइंड दिस। तो पहले तो आप देखो, ये देखिए, अब हम डायरेक्टली रेंट नहीं निकाल सकते हैं कि अगर हम सीधा ही कहें कि सीधा ही रेंट का फॉर्मूला लगा के करें। तो रेंट निकालने के लिए पहले वी नीड टू सी कि रेंट किस इक्वेशन में आता है। तो रेंट आता है कौन सी इक्वेशन में, ये आता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट वाली इक्वेशन में आता है। डोमेस्टिक इनकम वाले में जब हम ये लिखते हैं CE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस को अगर एक्सपेंड करें तो उसमें रेंट आता है। दैट मीन्स फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू होगी फिर हम इसको पुट करके इसकी हेल्प से निकाल पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको शायद लग रहा होगा कि कैसे पता चला, अभी पता चल जाएगा कि रेंट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। रेंट के लिए हमें ये टर्म चाहिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद ही हम ये इक्वेशन बना पाएंगे। तो पहले हमें इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल टू साइन के दोनों तरफ की वी नीड ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट रेंट, एक को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज हमारे पास आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए पहले ये निकालना पड़ेगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप देखो आपके क्वेश्चन में, अब आपने ये मेथड नहीं लगाना C प्लस OS वाला, बिकॉज हमें OS में रेंट मिसिंग है तो वो नहीं यूज़ कर सकते। तो अब आप देखो आपके क्वेश्चन में विच इज़ द मेन टर्म गिवन, जो लार्जेस्ट एग्रीगेट है दैट इज GDP एंड एट MP, ये दिया हुआ है। तो पहले वो लिख के उसको करेंगे डिवेलप की उसमें क्या चेंज करें। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बनाना है हमने ये नेट डोमेस्टिक। तो ग्रॉस में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, ये माइनस करेंगे तो हमारी टर्म ये बन जाएगी नेट टर्म। फिर दोनों डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। नाउ ये दिस इज एट मार्केट प्राइस, दिस इज एट फैक्टर कॉस्ट, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये माइनस करेंगे ये MP वाली टर्म में से, तो हमारी टर्म बनेगी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यूज। अब आप देखो विद द हेल्प ऑफ योर स्टेटमेंट, GDP एट MP है 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन, ये जो लास्ट थर्ड सेवंथ टर्म है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वही डेप्रिसिएशन होती है 1,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप चाहे यहाँ फॉर्मूला लिख लो, चाहे एक साइड पे यहाँ लाइन लगा के लिख लो ब्रैकेट में। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, आई होप कि अब आपको याद हो चुका हुआ है ये। तो आप चाहो तो एक साइड पे ऐसे लाइन लगा के एक साइड पे भी लिख सकते हो। तो ये सारा कुछ निकाल के आप चेक कर लीजिए, डू वी गेट दिस 15,250? यस मैम। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। तो साथ में लिख लो रुपीस और करोड़, इसको भी सर्कल कर दीजिए। ऑल दो मैंने आंसर लिख दिया खुशी के मारे, है ना, आंसर लिखना नहीं था, आंसर तो नीचे ही आना था, वो हैबिट पड़ी हुई है ना। तो बस जो भी कोई मेन टर्म आए, चलो जी आंसर लिख दो। तो चलो आपने नहीं लिखना, लिख भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब निकालना है रेंट। अब रेंट के लिए हमें ये इक्वेशन चाहिए क्योंकि इसके अंदर ही रेंट आएगा। तो नाउ राइट दिस इक्वेशन, NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है।
फिर अब दोबारा से वही टर्म लिख दो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस, अब इसको एक्सपेंड करिए ऑपरेटिंग सरप्लस को। तो एक्सपेंड कैसे करना है, कोई मुश्किल नहीं, ब्रैकेट लगा के राइट ऑल इट्स पार्ट्स, सब कुछ लिख दो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्लस प्लस करते जाना है, ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद है प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वी हैव गॉट हियर 15250, ये लिख दिया 15250, प्लस कंपनसेशन इज गिवन, हाँ जी दैट इज गिवन 6000, क्वेश्चन में देखो 6000। अगर ये भी मेन टर्म नहीं दी हुई, इसके भी पार्ट्स हैं, तो उनको भी फिर ब्रैकेट में करके ऐड कर लेना है। ठीक, प्लस अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, सारे प्लस साइन है तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, कोई चेंज नहीं आएगा। रेंट निकालना है तो वी हैव रिटन हियर रेंट, प्लस रॉयल्टी इज नॉट गिवन, दैट मीन्स जीरो, वैल्यू दिया ही नहीं है तो जीरो, प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 800, प्लस प्रॉफिट की वैल्यू इज गिवन 975, वो लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट अब हमने ओपन कर दी हुई है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस मिक्स्ड इनकम इज गिवन 7000। ठीक, अब आपको ये आपने 9th 10th तक ऐसे क्वेश्चंस किए ही हुए हैं इक्वेशन के, कि जब भी इक्वेशन में वी हैव टू फाइंड वन वैल्यू, तो दैट मीन्स रेस्ट ऑफ जो टर्म्स हैं उसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, मतलब एक ही चीज़ है जो निकालनी है, बाकी सबकी वैल्यू दी हुई है। तो अब आप क्या करो, सबको ऐड कर लो, ये तो यही रहेगा 15250, रेंट को छोड़ के रेस्ट ऑल वैल्यूज शुड बी एडेड, ये 6000 प्लस 800 प्लस दिस सारा कुछ ऐड करके प्लीज चेक, आपका ये वैल्यू आ रहा है 14775। आई मे ऑल्सो भी रॉन्ग बेटे, जल्दी जल्दी में करते हैं तो गलती हो जाती है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये तो वैल्यू हो गई, ये तो हो गया एडिशन ऑफ दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो प्लस रेंट तो अभी वैसे का वैसे ही है, उसको ऐसे ही लिख दो, प्लस रेंट, आगे लिख लो पीछे लिख लो, हार्डली मैटर्स। ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, प्लीज चेक, ये इक्वल टू है। अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ रेंट इज टू बी टेकन, तो रेंट इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 14000 वाली वैल्यू, इट विल कम टू दिस साइड, माइनस हो जाएगा 15000 वाली वैल्यू में से। तो आप चाहे और रेंट को जो निकालना होता है तो हमें हैबिट होती है लेफ्ट साइड पे उसको लिख लें, और 15250 माइनस ये वैल्यू, रेस्ट वी विल बी गेटिंग 475। ठीक है, तो ये आ गया रेंट इज इक्वल टू रुपीज़, साथ में करोड़। अब इसको आप सर्कल कर लें बेटे, एक बार चेक कर लो ये ज़रा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, वेरी राइट। ठीक है जी, तो ऐसे ही रेंट की जगह वी में बी आस्क्ड, अगला क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट निकालिए, या फाइंड प्रॉफिट, या फाइंड रॉयल्टी, या फाइंड सी, मतलब कोई एक चीज़ निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले हमने ये निकाल लेना एनडीपी, क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसकी हेल्प से, उसके बाद इसी स्टेप्स को फॉलो करके कर लेंगे। लेट अस सी, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हाँ जी, प्लीज नोट डाउन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। Indirect taxes या tax, that is 1500, 15, subsidies 700, profits 1100, consumption of fixed capital 700, फिर है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये टर्म जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दिस इज 17,500, then compensation of employees 9300, 9300, interest के आगे question mark is given because this is to be calculated, then mixed income 3500, last में rent is 800। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है, ट्राई करिए। पहले आप निकालो एनडीपी एट, आप कोशिश करिए, बिकॉज इफ आई शो द आंसर फिर मैनी स्टूडेंट्स दे डोंट ट्राई ऑन देयर ओन। पहले आप निकालो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अब आप देखो ये टर्म ले आओ आगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। हाँ जी, क्या होगा, माइनस, नेट बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, फिर फैक्टर कॉस्ट पे बनाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, करिए जरा, आप निकालिए फिर मुझे बताइए क्या आंसर आया आपका।
16,000. एक मिनट, हाँ जी 16,000, वेरी गुड, ऑल हैव गॉट बेटे, सभी बच्चे बताइए जरा, वीडियो ऑडियो ऑन कर लिया करो भाई। Yes. हाँ, न्यूमेरिकल पार्ट में तो फिर मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए ना, थ्योरी में तो चलो मैं ही बोल दूंगी। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा आंसर 16,000, ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, तो एक लाइन छोड़ के, ताकि थोड़ा डिस्टिंक्शन हो जाए कि हाँ भी एक पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट आप लिखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सीई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, you can see the formula but don't look at the solution, try to do yourself। CE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह मैंने पहले ही ऐसे लिख दिया, आप नेक्स्ट टाइम में भी लिख सकते हो। रेंट रॉयल्टी, अब रॉयल्टी ज़्यादा क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, ठीक है, न्यूमेरिक आप देखोगे और बुक्स में भी करोगे तो रॉयल्टी बहुत लेस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर इन विच रॉयल्टी इज गिवन, तो आप फिर अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, नो नीड टू राइट। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हो गए ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट्स प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब ये पार्ट्स क्यों लिखे, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना है ना, तो वो वर्ड बीच में लेके आना है हमने। तो नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी गॉट 16,000 इज इक्वल टू कंपनसेशन है 9,300 प्लस रेंट इज 800 प्लस इंटरेस्ट निकालना है वो ऐसे लिख लो, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट 1100 प्लस मिक्स्ड इनकम 3,500, ठीक है जी। ये सारा कुछ लिख के अब सारा ऐड कर लो, रेस्ट ऑल द वैल्यूज, एक ही वर्ड बचेगा हमारे पास में, इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी सबका एडिशन अकॉर्डिंग टू मी इट इज कमिंग आउट टू बी 14,700, ठीक। अब आपने निकालना है इंटरेस्ट, तो लेट इट बी ऑन दिस साइड, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 16,000 माइनस ये इक्वेशन को सेट कर ले तो माइनस 14,700 हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विद ₹1,300 करोड़। हाँ जी, मानसी अनिरुद्ध आ गया बेटे आंसर? ओके, अनिरुद्ध हो गया बेटे? Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश। मिताली जैन, आई कैन सी मिताली डन? Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश। काव्या, अमनप्रीत, तान्या, तमन्ना और भी सारे बच्चे एक बार बोल के बताइए, सभी बोल के। Yes, ma'am. वेरी गुड, दैट्स बेटर, Yes, ma'am. शाबाश, वेरी गुड है। क्वेश्चन आ गए आपको, तो अब मैंने ज़्यादा नहीं करवाने हैं, कल मैंने आई वांट टू स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड, ये बस इसी टाइप के हैं, सिंपल हैं क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अदरवाइज बाद में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना एक्सपेंडिचर मेथड के, तो उसमें ये भी साथ में होता है, फाइंड सो एंड सो कोई टर्म दी होती है विद एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, तो फिर वी विल बी हैविंग सफिशिएंट प्रैक्टिस एट दैट टाइम ऑल्सो। तो अभी ये सिंपल ही है, आप कोशिश करिएगा इन द मीन टाइम। चलो अब आप एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बेटे। यस, ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला, कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो गिवन टर्म्स आर compensation of employees 2,000, all in rupees करोड़ है, rent 400, profit 900, dividend 100, interest 500, mixed income 7,000, net factor income 2 abroad, please pay attention, net factor income 2 abroad, from abroad नहीं, 2 abroad 50, 50, फिर net exports 60, 60, net indirect taxes 300, depreciation 150, net current transfers to abroad 30, ठीक है। अब आप इफ़ यू पे अटेंशन तो दीज वर्ड्स आर समथिंग डिफरेंट, ये हमने पहले कभी पढ़े नहीं है, आए नहीं हमारे क्वेश्चंस में कहीं पर भी, नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया तो इसको भी कहीं ना कहीं फिट करना है, ऐसा कुछ नहीं, जो हमारे काम का नहीं है वी डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दैट,
ये हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है, कोई ना कोई और टर्म डाल देते हैं ताकि वी मे गेट कंफ्यूज्ड। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने अपने फॉर्मूला को चलाना है, उसके अकॉर्डिंग देखो। नाउ नेशनल इनकम, अब मैंने सोल्यूशन नहीं दिखाना, पहले आप लिखो नेशनल इनकम मीन्स NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू, तो इनकम मेथड में दैट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखेंगे, ये बनेगा, ठीक। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब क्यों डिफरेंस आएगा? बिकॉज इन द स्टेटमेंट वी आर नॉट गिवन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बताइए फिर ये प्लस होनी चाहिए कि माइनस होनी चाहिए? माइनस। माइनस होनी चाहिए ना, क्योंकि जब फ्रॉम अब्रॉड है तो हम अपने फॉर्मूला में प्लस लिखते हैं, तो अब अगर टू अब्रॉड है तो फिर माइनस माइनस लिख के अब आप अपनी इक्वेशन को ठीक कर लो जरा। अब आप लिखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ये इतना चेंज हमें एज पर द स्टेटमेंट क्वेश्चन के मुताबिक अपनी ओर से बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है उसके नीचे ब्रैकेट करके नेक्स्ट लाइन में अब उसके कंपोनेंट्स लिख ले, सीई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के भी आगे पार्ट्स दिए हुए हैं, रेंट रॉयल्टी नहीं है उसको छोड़ दो, इंटरेस्ट ये दिया हुआ है, प्रॉफिट ये दिया। अब एक मिनट जरा इधर देखिए, अब हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है, साथ में प्रॉफिट का एक कंपोनेंट भी दे दिया, डिविडेंड। तो व्हेन वी आर गिवन मेन टर्म तो देन वी डोंट हैव टू पे अटेंशन टू द पार्ट, ठीक है ना। जब हमें मेन ही दिया हुआ है तो प्रॉफिट ही लिखेंगे, डिविडेंड को कुछ नहीं करना। बट अगर प्रॉफिट ना होता और हमें दिया होता डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग, फिर उनको ऐड करना था हमने, ठीक है। तो जब मेन टर्म दी हुई है तो जस्ट लुक एट दिस ओनली, इसी को आपने ऐड करना है, करिए जरा। बी फास्ट, टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर। ये क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ जी चेक करो ज़रा, ये सोल्यूशन है, यू कैन चेक। NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ रहा है 10,750, 7 ही है ना ये, हाँ 7, 10,750। साथ में अब यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक किया, रुपीज़ नहीं लिखा है, रुपीज़ भी लिखना है, रुपीज़ करोड़। हाँ जी हिमानी, हो गया बेटे, डन, आ गया आंसर करेक्ट, ओके वेरी गुड। हाँ जी मान्या, गेटिंग द आंसर, शाबाश, वेरी गुड। चलो, विद दिस आई डोंट वांट टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, जो बुक में सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं ओनली ऑफ इनकम मेथड, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में साथ में एक्सपेंडिचर मेथड भी दिया होगा, तो उससे घबराना नहीं, वो अभी हमने किया ही नहीं है। यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनकम मेथड, बस इसी टाइप के ही हैं सारे, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आ जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड से कुछ ना कुछ निकालना होगा, फिर हमारी दोबारा से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी हम करेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर दोबारा भी करना, तो फिर एक ही बार कर लेंगे, ठीक है जी। सो विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। थैंक यू।